Okay, welcome Prisha, Arya. So, can we start? The start. So, today our point is classification of carbon and hydrogen. भाई कार्बन का क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे किया जाता है, हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उनके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन. अच्छा, carbon can be classified in four types: primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. अच्छा, this classification can be carried out on the basis of how many numbers of other carbon atoms are attached with particular carbon atom. कोई कार्बन के साथ दूसरे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उनकी नंबर के मुताबिक कार्बन का क्लासिफिकेशन किया जाता है. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी. प्राइमरी मीन्स 1, सेकेंडरी मीन्स 2, टर्सरी मीन्स 3 एंड क्वाटरनरी मीन्स 4. जरा उसके टाइप के पर से हम डिसाइड कर सकते हैं कोई ऐसा कार्बन कि जो एक कार्बन से और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है. फाइनली कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा. 4 वैलेंसी कार्बन की है. अमंग द 4 वैलेंसी, इफ 1 वैलेंसी is satisfied by 1 carbon atom and 3 other valencies are satisfied by 3 hydrogen atoms, and that carbon is known as a primary carbon. This carbon is known as a primary carbon because this carbon is attached with 1 carbon and 3 hydrogen. In this case, this carbon is surrounded by 2 other carbon atoms and 2 hydrogen. हमें कार्बन की 4 वैलेंसी बनानी है, कार्बन की 4 और 4 बॉन्ड बनाने हैं. जितने कार्बन है, जितने बॉन्ड 4 में से कम हो उतने हाइड्रोजन लगा देना है. This is tertiary carbon because this carbon is surrounded by 3 other carbon atoms and 1 hydrogen atom. That's why this carbon is known as a tertiary carbon atom. In quaternary carbon, the carbon atom which is surrounded by 4 other carbon atoms. No hydrogen will be present here. In quaternary carbon, एक भी हाइड्रोजन quaternary carbon के साथ जुड़ा नहीं होता है. थोड़ा एक टेक्निक समझ लो. प्राइमरी कार्बन के साथ हाउ मेनी अदर कार्बन एटम्स अटैचमेंट में होंगे? 1 कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन. दैट मीन्स primary carbon always possess 3 hydrogen atom. In case of secondary carbon के साथ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैचमेंट होते थे. That's why we can say secondary carbon possess 2 hydrogen atom. And tertiary carbon के केस में टर्सरी कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है. क्वाटरनरी कार्बन ऑलवेज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स. नो हाइड्रोजन विल बी हियर. अब देखो हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन ले लो. हाइड्रोजन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज: प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्सरी हाइड्रोजन. There is no chance for quaternary hydrogen. Why? कार्बन का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में होता है, हाइड्रोजन का लेकिन 3 टाइप्स में होता है. तो ये हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, वही समझो. यस, हाइड्रोजन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस दैट हाइड्रोजन किस टाइप के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. If hydrogen is attached with primary carbon, that hydrogen is known as a primary hydrogen. If hydrogen is directly attached to secondary carbon, then it is known as a secondary hydrogen. If hydrogen is attached with tertiary carbon, that hydrogen is known as a tertiary hydrogen. If hydrogen is attached with quaternary carbon, am I right or not, Arya?
Sanu, no, I'm wrong. In case of quaternary carbon, only 4 कार्बन एटम ही होंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा. That's why क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है. मीन्स हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन किस टाइप के कार्बन के साथ जुड़ा. यदि प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है, दे आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन. The hydrogen which are directly added to the secondary carbon, these all carbon hydrogens are known as a secondary hydrogens. The hydrogen atoms which are directly linked with tertiary carbon atom, they are known as a tertiary hydrogen atoms. तो ये हो गया classification. Primary carbon always possess 3 hydrogen, secondary carbon possess 2 hydrogen, tertiary carbon possess 1 hydrogen and quaternary carbon के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हम थोड़ा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. Then we will try to calculate number of primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon and quaternary carbon. Similarly, how many primary hydrogens are present in given compound? How many secondary hydrogens, tertiary hydrogen and quaternary hydrogen नहीं होगा. चलो, this is the illustration. CH3 single bond CH2 single bond CH single bond CH3 single bond C single bond CH3 single bond CH2 single bond CH3 single bond CH2 single bond CH single bond CH3 single bond CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3. ये कंपाउंड है. थोड़ा हम एक्सपांशन कर लेते हैं उसका. अच्छा, अलग अलग रूप में लिखते हैं. ठीक से आइसोलेट करते हैं हर एक एटम को. पहले समझ लेते हैं. एक ही एग्जांपल लेंगे, बाद में डायरेक्टली वी विल ट्राई टू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. ये सब इसमें है. पहले इसको समझ ले. इसका वर्जन ये है. दिस कार्बन इज अटैच विथ 3 हाइड्रोजन 1 2 3 अलग अलग लिखो. सिंगल बॉन्ड दिस कार्बन, ये दिस कार्बन अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड ये है. देन सिंगल बॉन्ड CH, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर CH3 है. वो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अलग से लिखो. देन C, ये C, इनके ऊपर CH3 है. दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स. नीचे की ओर जाओ, CH2, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट CH3, कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स. देन CH2, दिस कार्बन बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन. देन CH, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और CH3, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 हाइड्रोजन. देन CH2, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन. Then CH, carbon के साथ 1 hydrogen, single bond CH. This carbon is surrounded by 3 hydrogen and this carbon is also surrounded by 3 hydrogen atoms. अच्छा, now you see, हमने as per definition कार्बन की कोई कार्बन किस टाइप का है वो डिटरमाइन करना है. तो क्या करेंगे, उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हो वो कैलकुलेट कर लो. दिस कार्बन, ये कार्बन प्राइमरी है करके एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई दिस वन इज प्राइमरी. दिस इसको पकड़ो, ये कार्बन इनके साथ और इनके साथ जुड़ा, दैट्स व्हाई दिस वन इज सेकेंडरी कार्बन. और ये कार्बन को पकड़ो, दिस कार्बन इज सराउंड बॉन्डेड विथ 1 2 and 3 कार्बन एटम्स. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज टर्शियरी कार्बन. इसकी बात करेंगे तो दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम. दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन. ये कार्बन की बात करेंगे, दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1 2 3 and 4. That's why this carbon is quaternary carbon. इसकी बात करेंगे, this carbon is bonded with 1 and 2 carbon. That's why it is secondary carbon. ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा, that's why this is primary carbon. इनकी बात करें, this is bonded with 1 and 2 carbon. That's why it is secondary carbon. This carbon is bonded with 1 2 and 3 carbon. That's why this is tertiary carbon. एक ही कार्बन के साथ जुड़ा तो ये प्राइमरी कार्बन. ये कार्बन
वन और टू, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे. दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 1, 2 and 3 कार्बन एटम. दैट्स व्हाई दिस इज टर्शियरी कार्बन. This one is primary carbon. This one is also primary carbon because they both carbon atoms are bonded with only one carbon atom. अब देखो जरा, पहले कार्बन के टाइप डिसाइड कर लो. प्राइमरी कार्बन कितने हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ये 7 प्राइमरी कार्बन है. सेकेंडरी कार्बन की बात करें, दिस इज 1, 2, 3 and 4 सेकेंडरी कार्बन है. देन टर्शरी कार्बन कैलकुलेट करो, 1 and 2 और ये 3 सेकेंडरी कार्बन है. ये दिस इज 3. देन क्वाटरनरी कार्बन ओनली 1 कार्बन, ये क्वाटरनरी कार्बन है. ओके. नाउ अभी हाइड्रोजन हमें कैलकुलेट नहीं करना है. एक समझ लो, प्राइमरी कार्बन के साथ हर में 3 प्राइमरी हाइड्रोजन अटैचमेंट में है. द हाइड्रोजन एटम्स विच इज अटैच विथ 3 प्राइमरी कार्बन एटम, दे आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन. तो यहाँ देखो प्राइमरी कार्बन के नंबर 7 है, तो हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे. वो हर एक हाइड्रोजन एटम प्राइमरी होंगे. 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 21 हाइड्रोजन प्राइमरी होंगे. इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स. सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे. तो यहाँ 4 सेकेंडरी कार्बन है. दैट्स वाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे. यहाँ टर्शरी कार्बन 3 है और टर्शरी कार्बन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन अटैचमेंट में है. तो तीन टर्शरी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन टोटल कैलकुलेट करो. 3 टर्शरी हाइड्रोजन होंगे. क्वाटरनरी कार्बन 1 है, लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कभी होंगे ही नहीं, तो 0. अब देखो, हमें ऐसा हर बार करना नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. ये एक कार्बन के जो दिस इज प्राइमरी, this carbon is surrounded by 3 carbon, 1, 2, 3. That's why this is tertiary. This one is primary because ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. इनकी बात करें, this carbon is surrounded by 1, 2, 3 and 4. That's why this is quaternary carbon. This carbon is bonded with 1, 2 and 3 carbon. That's why it is tertiary carbon. ये both carbon atoms primary carbon because एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. इनकी बात करें, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 1, 2 and 3. दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी टर्शरी कार्बन. और ये दोनों प्राइमरी कार्बन है बिकॉज बोथ कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ओनली 1 कार्बन एटम. नाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 प्राइमरी कार्बन. तो प्राइमरी हाइड्रोजन 7 मल्टीप्लाई बाई 3, 21. डायरेक्ट ये सब कैलकुलेट 3, 6 प्लस 9 प्लस 12 ऐसे निकल करना है. सेकेंडरी कार्बन, इसमें कोई सेकेंडरी कार्बन नहीं है. सेकेंडरी कार्बन नहीं तो सेकेंडरी हाइड्रोजन विल बी ऑल्सो नील, 0. टर्शरी कार्बन 1, 2 and 3. नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन इज 3. दैट्स वाई टर्शरी कार्बन 3 है तो टर्शरी हाइड्रोजन भी 3 होंगे क्योंकि टर्शरी कार्बन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन होता है. क्वाटरनरी कार्बन एक ही है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन विल बी 0. ओके, ले ले. इसमें ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इनके से एक ही साथ जुड़ा हुआ है. ये दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज क्वाटरनरी कार्बन. इसकी बात करें तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन 1 और 2. ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन. दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन. नाउ यू कैलकुलेट द प्राइमरी कार्बन नंबर. 1, 2, 3 and 4 प्राइमरी कार्बन. तो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 हो जाएंगे. सेकेंडरी कार्बन
1, 2, 3 and 4. 4 secondary carbon. So number of secondary hydrogen will be 4 multiplied by 2, 8. In this compound, 8 secondary hydrogens are present. Yes, number of tertiary carbon. There is no tertiary carbon present in this one. That's why this tertiary hydrogen will be 0. And quaternary carbon is only 1. Quaternary hydrogen will be also 0. This is, ये प्राइमरी कार्बन है, ये अपने आप कैलकुलेट करो, कोई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेना. ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये क्वाटरनरी है, ये दिस आल्सो क्वाटरनरी, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड प्राइमरी. नाउ देखो, calculate the total number of primary carbon present in this compound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's why this compound possesses primary carbon. How many? 8. Then primary hydrogen will be present as 8 multiplied by 3. 24 हो जाएगा. You see secondary carbon. There is no secondary carbon in this one. That's why number of secondary hydrogen will be 0. Tertiary carbon की बात करें, 1 and 2. These both carbon atoms are tertiary carbon atom. That's why number of tertiary carbon is 2. So number of tertiary hydrogen will be also 2. क्योंकि tertiary carbon के पास only 1 hydrogen जुड़ा रहता है. इन क्वाटरनरी कार्बन की बात करें, दिस बोथ कार्बन एटम्स आर क्वाटरनरी कार्बन. दैट्स व्हाई नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन इन दिस कंपाउंड इज 2. बट क्वाटरनरी हाइड्रोजन 0 होगा. ओके ओके, चलो यहां खत्म करते हैं. प्रिशा, लर्न करते रहना, एकदम सिंपल है, कुछ टफ नहीं है. समझ के करना, रट्टा कभी मारना नहीं. स्वरा, समझ में आया? आर्या, ओके, थैंक यू वेरी मच.